Hello everyone, I welcome you all in my EVS class and today we are going to study chapter 25. Alright, chapter 25 Days to Celebrate. Alright, so here in this chapter we will learn about why do we celebrate this day. Alright, what is the importance of celebrating this day? If you look at the calendar, we will find almost every now and then we celebrate something religious festival. All right, so I don't think that I should explain all right. So there are two types of festivals which we celebrate: national festivals, all right, and religious festival. And you all are very well aware about what is the difference between these two festivals. All right, so religious festivals like Holi, Dashehra, Diwali, Eid. All right, so these festivals are known as religious festival. But national festivals like Independence Day, like Republic Day, like Environment Day. All right, so we should learn when do we celebrate these festivals. We all have some international festivals also. So if you look at the calendar, let me explain in Hindi. If you look at the calendar, अगर आप calendar देखते हैं, we find almost every now and then we celebrate something, है ना. कैलेंडर में हमें देख के पता चलता है कि हम कभी गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करते हैं, तो हम कभी अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, कभी हम वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट. सो वी सेलिब्रेट समथिंग. It may be religious, it may be festival, harvest festival may be there, national festivals may be there, and some international festivals may be there. In this lesson, we will learn about some important days which are celebrated all over the world. In this chapter, Days to Celebrate, we will learn some important days. हम कुछ महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानेंगे विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, राइट. नॉट ओनली इन इंडिया बट दे आर सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. द फर्स्ट वन इज अर्थ डे, जिसे हम हिंदी में पृथ्वी दिवस कहते हैं, ठीक है. सो गेलॉर्ड नेल्सन, a US senator, founded, and he was a great environmentalist also. So Gaylord Nelson, a US senator, founded the Earth Day on 22nd April. So on 22nd April 1970, he founded a day to celebrate Earth Day. So who had started this day? The person was Gaylord Nelson. सिंस देन वी सेलिब्रेट अर्थ डे, ठीक है. तभी से हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करने लगे. फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू सेलिब्रेट दिस डे? वी सेलिब्रेट दिस डे टू यू नो टू क्रिएट अवेयरनेस. लोगों में जागरूकता को पैदा करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. सो हमें किस चीज़ के लिए अवेयर करना है पीपल को? अबाउट अर्थ रिसोर्सेज, जो पृथ्वी के रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, एंड द नीड टू कंजर्व देम. और जो हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हें कंजर्व क्यों करना है ना. हमें उन्हें कंजर्व क्यों करना है, हमें उन्हें सुरक्षित क्यों रखना है, इसके बारे में एक जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए वी सेलिब्रेट अर्थ डे. हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं. Workshops, talks, seminars, and competition for children are organized to spread the message of preservation. All right. So yes, we organize workshops. Workshops होते हैं, talks होते हैं, seminars organize किए जाते हैं, और competitions भी organize करते हैं among children to spread the message of प्रिजर्वेशन, है ना. उन्हें एक छोटी सी एज से ही उनमें ये मैसेज हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे उनको प्रिजर्व करना है. वी जस्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग लिटिल चिल्ड्रन हाउ डू दे कैन प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. Global warming, air pollution and water pollution are a few topics which are discussed, ठीक है. Global warming,
जब ये सेमिनार्स होते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या जो एक टॉक होते हैं, उसके बारे में जो हमारी जो थीम होती है या जो टॉपिक होती है, उसमें ज़्यादातर लोग ग्लोबल वार्मिंग पे डिस्कस करते हैं, एयर पोल्यूशन पर डिस्कस करते हैं और वाटर पोल्यूशन पर भी डिस्कस करते हैं. दीज आर फ्यू टॉपिक्स विच आर डिस्कस्ड. ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर डिस्कशन किया जाता है. ऑलराइट, पीपल ट्राई टू एजुकेट अदर्स अबाउट नॉट कटिंग ट्रीज, है ना. लोग उनको अवेयर करते हैं, उनमें जागरूकता फैलाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं कि उन्हें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. सेविंग वाटर, उन्हें पानी को बचाना चाहिए, एक्सेट्रा. वी मस्ट ऑल रिमेंबर दैट अर्थ इज़ आवर मदर. हमें ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि पृथ्वी हमारी माँ है. एंड वी मस्ट प्रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन. और हमें पृथ्वी को और इस पे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, है ना. और इसके लिए लोगों में जागरूकता भी फैलानी चाहिए. सो नाउ द चिल्ड्रन, your task is you have to tell me what can be other topics by which we can spread awareness among children, all right, to preserve our resources. So you all can type in chat box. Now let's come to the next topic, World Environment Day. This is celebrated on 5th June every year by the United Nations. So World Environment Day is celebrated on 5th June. ये हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. Many activities are held to make us aware of the dangers our environment is facing, है ना. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है लोगों को अवेयर करने के लिए. आर एनवायरनमेंट इज़ फेसिंग, जो हमारा वातावरण इस समय जिन चुनौतियों का, जिन चैलेंजेस को, जिन डिफ़िकल्टीज़ को हमारा एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, इन चीज़ों पर लोगों को अवेयर कराने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है. पेंटिंग कंपटीशन, येस, आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट इट. यू ऑल आल्सो डूइंग, आप लोग भी कर रहे हैं. तो पेंटिंग कंपटीशन कराई जाती है, रैलीज कराई जाती है, प्लेज, नाटक भी होते हैं लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए. तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, टॉपिक क्या होते हैं. किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मीन्स वी शुड नॉट किल देम, ठीक ना, ठीक है. वी आर मेकिंग देम अवेयर, डोंट किल वाइल्ड एनिमल्स. Cutting down of forests, don't cut down forests. The next is pollution of air, water, land. There are many kinds of pollution and yes, उस पर भी रैलीज होती हैं, पेंटिंग कंपटीशन होते हैं और प्लेज होते हैं. And yes, the more important, global warming. Okay, so now I'm moving to the next slide. इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है. दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 सितंबर. ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है बाय यूनेस्को के द्वारा. द मेन एम इज़ टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टूवर्ड्स द नीड टू एजुकेट एवरीवन. द मेन एम, इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है, इज़ टू ड्रॉ मीन्स खींचना, द अटेंशन मीन्स लोगों का अटेंशन खींचना, लोगों का ध्यान खींचना, बाय द पीपल, अटेंशन ऑफ द पीपल मीन्स लोगों का ध्यान खींचना ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो लोग हैं उन लोगों का ध्यान खींचना, टूवर्ड्स द नीड टू एजुकेट एवरीवन. ये एक ज़रूरत है कि हमें हर किसी को एजुकेट करना है. एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ. दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑन 8 September. In 8 September of every year. In India, National Literacy Mission has launched a program Each One Teach One. ठीक है, भारत में भी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उन्होंने भी एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है. Each One Teach One मीन्स हर एक को पढ़ाइए, है ना, हर एक को टीच करना है. सर्व शिक्षा अभियान वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा. एमिंग at providing free and compulsory education to all the children between age of 5 to 14 years. ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान जो कि हमारी सरकार के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था कि सभी को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा दी जाए जो बच्चे 5 से लेकर 14 साल के बीच हैं. वन महोत्सव.
दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। वन महोत्सव जो है वो फॉरेस्ट्स का फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मानसून। और ये कब मनाया जाता है? मानसून के समय मनाया जाता है, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। और ये बारिश के समय या मानसून के समय इसलिए मनाया जाता है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, इसके बारे में एक जागरूकता फैला सकें कि जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं, देयर एडवांटेजेस, और उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एंड द वेज टू मेंटेन देम, और हम उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इट वॉज इनिशिएटेड बाय कन्हैया लाल मानिक लाल मुनोही इन 1950, एंड yes, this awareness was started or initiated by कन्हैया लाल मानिक लाल मुनोही। कन्हैया लाल मानिक लाल मुनोही ने 1950 में वन महोत्सव ये प्रोग्राम शुरू किया था, या वन महोत्सव जो हम सेलिब्रेट करते इस फेस्टिवल को उन्होंने शुरू किया था लोगों में जंगल की जागरूकता को फैलाने के लिए, और इसके क्या लाभ हैं, इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए। He was the Union Minister of Agriculture. So who was Kanhaiya Manik Lal Munohi? He was Union Minister of Agriculture. He said tree means water, और उन्हीं का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि वृक्ष का मतलब जल होता है, और जल का मतलब रोटी होती है, और रोटी से ही जीवन होता है। फाइन। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे। So when do we celebrate Teachers Day? When do we celebrate Children's Day? We all know that. All right. So Teachers Day is celebrated on 5th of September every year, and Children's Day is celebrated on 14th November. So let's discuss this point also. These 2 days are celebrated in India. ये जो दोनों दिन है वो भारत में मनाए जाते हैं। टीचर्स आर ऑलवेज वर्शिप्ड एज गुरु इन इंडिया, और भारत में जो गुरु होता है ना, भारत में जो टीचर होता है उसको हम गुरु कहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, हु वाज आवर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, एंड अ टीचर, और वो एक टीचर भी थे। ऑलवेज गेव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू टीचर, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमेशा अध्यापकों को बहुत महत्व दिया, टीचर्स को बहुत महत्व दिया। 5 सितंबर which is his birthday is celebrated as Teachers Day। 5 सितंबर जिस दिन उनका जन्म दिवस है, उसी दिन को हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे अध्यापक भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। ही ऑलवेज सेड दैट फ्यूचर ऑफ एनी नेशन लाइज इन द हैंड ऑफ इट्स चिल्ड्रन, और वो हमेशा कहते थे कि जो देश का भविष्य है वो बच्चों के हाथों में है। दैट्स वाई 14th नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। इसीलिए हम हर 14 नवंबर को बच्चों का दिन मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। UN Day, United Nations has played an important role in maintaining peace and society। United Nation जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शांति और शांति को बनाने के लिए, ठीक है। मेंटेनिंग पीस एंड सोसाइटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर। ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 1945 में। जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तुरंत बाद ही, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति रहे, लोग शांति से रह पाएँ, वॉर जैसे हालात ना पैदा हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। टुडे देयर आर 193 मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है। इस समय 193 मेंबर्स हैं इसमें, 193 देश के मेंबर्स हैं। हु मीट रेगुलरली, जो हमेशा एक उनका फिक्स टाइम होता है जहाँ पर वो मिलते हैं, ठीक है। एंड वो डिस्कस करते हैं अबाउट पीस, अबाउट हेल्थ, अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट प्रॉब्लम्स फेसिंग द नेशंस। अगर कोई देश में इन सारी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं पर वो डिस्कस करते हैं, वो समस्या ना होने पाए इसलिए भी वो उस पर डिस्कस करते हैं। टॉक्स, डिबेट्स एंड सेमिनार हेल्ड टू सेलिब्रेट दिस डे, और वो लोग डिबेट्स भी करते हैं, है ना, टॉक्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं इस दिन को मनाने के लिए। सो चिल्ड्रन, नाउ योर टास्क इज यू हैव टू राइट इन कमेंट बॉक्स व्हेन डू वी सेलिब्रेट वाटर डे। सो एवरीवन राइट इन चैट बॉक्स व्हेन डू वी सेलिब्रेट वाटर डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।